Assalamu alaikum. I hope so you all are fine and fantastic and you all are enjoying your vacations. So I'm Hanzal Arshad and I am back with another video of the roadmap of second semester. As you all know that the university is going to be started from Monday inshallah ta'ala. So the second semester will start from Monday. So I'm back with the video of second semester's roadmap. As you all know that I also made a video on the first semester's roadmap. सो आई वांट टू नो कि जो लास्ट वीडियो थी उसका क्या फीडबैक रहा आपकी नज़र में और कहाँ कहाँ पर रिसोर्सेज कलेक्ट करने में आपको उस वीडियो से मदद मिली. आई वांट टू नो इन द कमेंट सेक्शन. So without any further distraction, just move towards the video. Bismillah Rahman Rahim. In second semester, our most important and core subject is OOP. In programming languages, there are different kinds of paradigms like procedural programming paradigm, like functional programming paradigm, like object-oriented programming paradigm. So in previous semester, we have studied C programming that is based on the procedural programming paradigm. And object-oriented programming paradigm is one of the programming paradigm that is used for problem solving and that is used to solve the problem of the real world. So it is based on the concept of objects and classes. Or Java is considered as pure object-oriented programming language. Although C++ is also a object-oriented programming language, but Java is mainly used in the product-based companies, and C++ is used in the service-based companies. So for the resources, there are two types of resources you can get the courses of Java. So on YouTube, there are two channels, although there are many channels, but in my recommendation, there are two. Number one is Code with Harry, and number two is अपना कॉलेज. और अगर आप मुझसे पूछें इन दोनों में से कौन सा करना चाहिए, सो आई वुड डेफिनेटली गो विद अपना कॉलेज. उसकी एक वजह यह है कि जो हैरी है वो चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करता है, जिससे बाज़ औक़ात जो जो चीज़ों का समझने का अंदाज़ है वो थोड़ा सा आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते और थोड़ी सी मुश्किल होती है जिस चीज़ को समझने में. वहीं पे अगर अपना कॉलेज की बात करें तो वो एक एक चीज़ को इजीली डिफाइन किया जाता है उनके लेक्चर्स के अंदर. सो जो भी कैंडिडेट है या जो भी स्टूडेंट है उसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है चीज़ें. और जो नोट्स उनके सेक्शन मिलते हैं अपना कॉलेज के, दे आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट नोट्स. Okay, for if you want to learn from websites, so there are two websites. Number one is Java T Points. Java T Points की मदद से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं अपने. And number two is Geek for Geeks. Geek for Geeks के ऊपर जाकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस निकाल सकते हैं. वहाँ पर मेनली इजी क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चंस वहाँ पर अवेलेबल होंगे आपके पास. So these are the resources for Java. Another most important subject is DLD. DLD stand for Digital Logic Design. Digital Logic Design is basically a subject that is based on the internal functionalities of computer. के सर्किट्स किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, और नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम में कन्वर्जन्स किस तरह होती हैं, हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कौन सी कन्वर्जन करते हैं, इंटरनली कौन सा नंबर सिस्टम है जो यूज होता है. तो these all the things are included in the digital logic design. So if you want to talk about the resources, so definitely there are two resources. Number one is YouTube and websites. So on YouTube there are three channels that I can recommend you. Number one is Neso Academy. The best they have best lectures on the on digital logic design. Number two is Gate Smashers. वो lectures जो आपको Neso पे नहीं मिलेंगे वो Gate Smashers से मिल जाएंगे. And the number three is Ma'am Zeenat Hasan Academy. कुछ जो टॉपिक्स हैं वो नेसो पे नहीं है, वो गेट स्मैशर्स पे नहीं, तो वो आपको मैम जीनत हसन की जो प्रोफाइल है, जो यहाँ पर प्लेलिस्ट है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की, वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएंगे. और इफ़ यू टॉक अबाउट द वेबसाइट्स, इफ़ यू टॉक अबाउट द नोट्स, तो नोट्स के लिए आपको जावा टी पॉइंट्स मिल जाएगी. अगेन गिग फॉर गिग्स, वहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी. एंड नंबर लास्ट इज जो है रटगर्स यूनिवर्सिटी ने कोर्स लॉन्च किया है 2013 के अंदर. आपको वो आप गूगल पे लिखेंगे DLD कोर्स तो आपको मिल जाएगा रटगर्स यूनिवर्सिटी का. आप वहाँ पर जाके भी उस कोर्स की मदद से भी चीज़ें कर सकते हैं. उन्होंने एक कंटेंट बनाया हुआ है, कंटेंट के आगे लेक्चर्स दिए हुए, आगे PDF दिया हुआ है, तो आप PDF को क्लिक करके नोट्स वहाँ से जो है ना वो गेट कर सकते हैं और वो नोट्स अच्छे नोट्स हैं. सो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के ये रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की. उसके बाद अगर बात करें तो वो है CPS कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स. अच्छा, कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है ना वो एक ऐसा सब्जेक्ट कह लें वो है जिसको हम एक तरह से इंग्लिश ही कहते हैं. अब इसके अंदर क्या है कि आपने इसके अंदर बताया जाएगा कि कम्युनिकेशन के 7 C's कौन से होते हैं, ठीक है, और कम्युनिकेशन किस तरह करनी चाहिए, प्रेजेंटेशन किस तरह डिलीवर किया जाता है, ठीक है. ये तमाम चीज़ें जो है ना वो रिलेट करेंगी इंग्लिश के साथ. तो
जो टॉपिक है वो आपको डिफरेंट यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। इसके लिए कोई एक प्ले लिस्ट नहीं है, आप गूगल पे भी कोई भी टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। ब्रिटेनिका है इसके लिए, और अगर आपको यूट्यूब पे चाहिए तो यूट्यूब पे भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी इसके हवाले से। मूव करते हैं आगे, जो कि है हमारे इस्लामिक स्टडीज़ में मोस्टली जो डॉक्टर बशीर अहमद रिन की बुक रेकमेंड की जाती है, आप उसकी पीडीएफ देख सकते हैं, या कोई भी वो बुक जो इस्लामियत की बेसिक बुक्स होती हैं, जैसे फर्स्ट मैट्रिक की हो गई, फर्स्ट इंटर की होगी, तो उसकी भी मदद से आप इस्लामिक स्टडीज़ का जो पेपर है वो क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद मूव करते हैं आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री एक इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट में भी पढ़ के आ चुके हैं इंजीनियरिंग वाले बच्चे मेरी तरह। तो इसके लिए जो सब्जेक्ट ये है उसके लिए आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब के ऊपर जो मोस्टली लेक्चर्स हैं मुझे अच्छे लगे, वो मैथ प्रोफेसर हैं एक इकबाल हैदर भट्टी साहब, उनके लेक्चर्स आप सुने। मैं सारे डिस्क्रिप्शन में ना सारे लिंक्स दे दूंगा आपको डिवाइड करके, भाई डिजिटल लॉजिक के लिए ये लिंक्स हैं, उसके अलावा ऊप के लिए ये लिंक्स हैं, इसी तरह जो आपका कैलकुलस है उसके लिए ये लिंक्स हैं। तो आप उनकी मदद से आप जो है ना वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सो मूव टूवर्ड्स अनदर रिसोर्स दैट इज फिजिक्स वाला इज माय फेवरेट यूट्यूब चैनल, जिसकी मदद से मैंने फिजिक्स के पेपर क्रैक किए हैं अपने फर्स्ट इंटर के अंदर और यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी। सो इनकी जो लिस्ट है वो आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। That is one of the best links. Another one is Virtual University's Calculus Analytical Geometry playlist. That is one of the best playlist. लेकिन यहाँ पर ये कि लेक्चर्स थोड़े से पुराने हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ना वो अच्छे डिलीवर किए गए हैं, जिसकी मदद से आप जो लोग हैं वो कैलकुलस को जिनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, थोड़ी सी आसानी क्रिएट हो सकती है यहाँ से। So I will get the link in the description box. नंबर लास्ट जो है हमारा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में ज़्यादातर सेट के हवाले से क्वेश्चंस होंगे, सेट थ्योरी होगी पूरी इसके अंदर, एंड आर्गुमेंट्स होंगे, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, टोटोलॉजी वगैरह, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर होंगी। तो इसके लिए जो चैनल है दैट इज मलिक शाहजेब ऑफिशियल्स। नंबर सेकंड इज डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित, इनके कुछ लेक्चर्स हैं जिनको आप ले सकते हैं। एंड नंबर लास्ट इज नेसो अकेडमी के ऊपर भी इसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कैलकुलस के हवाले से बताना भूल गया, वो ये था कि आप कैलकुलस में डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित साहब की जो है प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं। These are the resources for the second semester. Now move towards the tips and tricks for the second semester. So in my opinion, second semester के अंदर 3 main subjects हैं आपके। Number 1 is calculus analytical geometry, OOP and digital logic design. इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। जो भी लेक्चर आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है आज, घर जाके उस पर थोड़ा सा रिवीजन करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, स्पेशली जो है OOP के और इसके कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री के। तो आपकी जो थोड़ी सी थिंकिंग एबिलिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से आपको समझने में आसानी होगी, और चीज़ों को थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश किया करें, और थोड़ा सा सोच विचार किया करें, ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो इसे कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। तो क्रिटिकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे इस्लामियत हो गया और कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गए, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन ये है कि आपको फर्दर इनके इस्लामिक स्टडीज़ जो है ना वो हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है, बिकॉज वी ऑल आर मुस्लिम, सो इतनी तो हमें समझ होती है चीज़ों की कि नमाज क्या है, हज क्या है, ज़कात क्या है। तो ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी ध्यान दीजिएगा। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग के कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स के हवाले से, जो कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स में ये है कि जो क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर फोकस करें, और आकर जो है ना वो स्टेज पे आकर बोलने की कोशिश करें जब भी आपको कोई प्रेजेंटेशन का मौका मिले, बिकॉज ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में, कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्डअप करने में जो है वो मदद देती है। सो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर अच्छा गुजरेगा, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि दिस वीडियो विल हेल्प यू। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, और कोई भी कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, और इस वीडियो के कमेंट में भी आप मुझसे कर सकते हैं। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।